Okay, Assalamualaikum bete. Now let's start with cell membrane and transport. Today I'm going to discuss the MCQs of cell membrane and transport with you. All the questions from October, November 2022 session. So let me share the screen with you. Here are the questions from October, November 2022. Let's start doing this first question. Okay. Now, this first question says a cuboidal epithelium cell has a length of 2 micrometer. So it is clear that, let me enlarge it a bit. You can see they are saying it's cuboidal, like it's a cuboid. And the cell is in a approximate cube shape. साथ वो ये भी कह रहा है कि it's approximately a cube shape, but not a cube. It's cuboidal. It's a cuboid. What's the most accurate estimate of the surface area ratio volume of this cuboidal? Again, it's saying it's a cuboid epithelium cell, because you know that for surface area there's a different formula for a cube and a cuboid. For a cube, its surface area is 6 into any one of its side is the surface area of a cube. But here, as we are calculating it for a cuboid, because it says that it's a cuboid, so for cuboid, we're going to find out the surface area is using this formula: length into breadth plus 2 into length into height plus 2 into height. That's the formula for the surface area of a cuboid. Cuboid का ये है और cube का ये है. So that's why it should be clear in your mind that whether it's a cube or a cuboid, and it's being mentioned that it's a cuboid, which is approximately a cube shape. Means that if one of the measurement of the length is one of the side is 2 micrometer, तो बाकी क्योंकि it's more like a cube, although it's a cuboid but like a cube, तो हम approximately कह सकते हैं कि अगर उसकी लेंथ जो है वो 2 माइक्रोमीटर है, तो उसकी जो हाइट है और उसकी जो, बिकॉज इट्स लाइक अ क्यूब नॉट एग्जैक्टली अ क्यूब बट लाइक अ क्यूब, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं the other sides, if length is 1, the other sides can be 1.5. ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि क्यूब में तो all the sides are of equal measurement, length, breadth and height, but cuboid में the sides are of different measurements. So if it is saying कि the length is 2 micrometer, तो we can assume कि क्योंकि वो क्यूब की तरह ही है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो height can be 1.5 micrometer and its width can also be 1.5 micrometer. ठीक है, that's what just we are assuming from this explanation कि जी it's a cuboid, इसकी एक लेंथ 2 माइक्रोमीटर है and it's this cell is an approximate cube shape, क्यूब की तरह ही है, तो इसका मतलब है कि उसकी बाकी मेजरमेंट्स ठीक एग्जैक्ट 2 नहीं होंगी, जैसे कि क्यूब में सब बराबर होती हैं, लेकिन हम 1.5 रख लेते हैं. व्हाट्स द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस गिवन है ना, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज अपने माइंड में जो है वो अप्रोक्सीमेटली लानी होंगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट. ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम जरा ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं अबाउट द मेजरमेंट्स, अदरवाइज तो हमारा रफ आइडिया होगा ना, तो रफ आइडिया इतना एक्यूरेट नहीं जाता. सो द सरफेस एरिया रेशियो, वॉल्यूम रेशियो ऑफ दिस cuboidal epithelium, there are 4 options given to us. If we use this and you know the volume of cube and cuboid both are same, the formula is same, length into breadth into height. We use the formula for both cube and cuboid, चाहे cube है चाहे cuboid है, आपने यही फॉर्मूला यूज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सरफेस एरिया, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम. अब अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि इसकी ये लेंथ ये है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है 1.5 1.5, इसको फॉर्मूला में आप वैल्यूज को पुट करते हो, वॉल्यूम तो आपका इजीली निकल आएगा. आप इसको वॉल्यूम को अंदर वैल्यूज पुट करें, 2
into 1.5 into 1.5, तो क्या आता है? और सरफेस एरिया जब आप इसका निकालते हैं तो 2 into 1.5 plus 2 into 1.5 plus 2 into 1.5 into 1.5। ठीक है, ये आपका पूरा आपने वैल्यूज पुट कर दी। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ऑन कैलकुलेशन यू गेट, जब आप इसका, ये आपका सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकल आएगा ना, तो जब आप इसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो यू गेट in order to, when you calculate it you get 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और जब आप इस सारे को कैलकुलेट करते हैं तो यू गेट 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये सारी हमारी जस्ट रफ assumptions चल रही हैं। और जब आप इसको करते हैं सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम, तो दैट्स 15:4.5। एंड ये आपको पता है कि 15 और 4.5 आपके पास इसका जो रफ आता है वो तकरीबन 3.3:1। ये आपके पास सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम आ जाता है इस कैलकुलेशन और डिस्क्रिप्शन से। सो द करेक्ट आंसर इज दिस, बी, 3:1। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट भी करके देख लें। और आप इसको मतलब क्योंकि उसने कहा ना कि अप्रोक्सीमेटली क्यूब ही है, तो आपने सारी साइड्स को 2 नहीं किया, लेकिन हमने 1.5 कर दिया, क्योंकि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की जो साइड्स हैं दे आर डिफरेंट इन मेजरमेंट्स। तो आपने उसको टू इस, एक तो मेन आपके पास 2 थी विच वाज गिवन, तो बाकी आपने 1.5 करके यूजिंग द फार्मूलाज कैलकुलेशंस कर ली, और आपने उसका जो मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट कर लिया कि वो 3:1 है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों जो है वो आपको पता है कि थ्रू द सेल मेम्ब्रेन होती हैं। फैसिलिटेटेड में आपकी करियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन्स दोनों फैसिलिटेट कर रही होती हैं इन, और देयर दीज करियर एंड चैनल प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और स्पेसिफिक आयन, और इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। हाँ, एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि किसी स्पेसिफिक पोलर मॉलिक्यूल या आयन के लिए होती है, जिसमें से वही आयन या मॉलिक्यूल अंदर या बाहर सेल के जाता है। दूसरा है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी की जरूरत होती है, और ये भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ करियर प्रोटीन से होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसकी बेस में एटीपीएस पंप होता है। ऐसे करके आपकी करियर प्रोटीन होती है, वही उसकी बाइंडिंग साइट होती है, एंड इट ओपन्स अप ऑन वन साइड एंड देन क्लोजेस एंड देन ओपन्स अप ऑन द अदर साइड, सो द मॉलिक्यूल मूव्स इन टू द आउट ऑफ द सेल। लेकिन इसकी बेस में जो है ना वो एक पंप होता है, एटीपीएस पंप, जिसको हम कहते हैं, एटीपीएस से ही पता लगता है कि एटीपीएस यानी कि इट्स लाइक एन एंजाइम, इट्स एक्चुअली एन एंजाइम व्हिच ब्रेक्स एटीपी। सो एक्चुअली क्या होता है कि एटीपी इज ब्रोकन बैक इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट आयन, एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सो द मटेरियल्स कैन go against their concentration gradient through this carrier protein. Facilitated diffusion is done by both carrier and channel proteins, and these carrier proteins are simple ones which do not have ATPase pumps because they don't need energy. That's diffusion, that's done down the concentration gradient. But active transport is done against the concentration gradient, so that needs energy. So जो carrier proteins active transport में involve होती हैं वो होती हैं जिनकी बेस पे ATPase pump होता है, वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है by breaking ATP into ADP and phosphate आयन, तो फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है और आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है। सो इसमें से दे आर सेइंग कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बोथ ऑफ दीज, दोनों के लिए कौन सी आपकी करेक्ट आती है। सो दैट्स एज द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंजेस, सो डज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। Molecule always move at the same rate, concentration gradient, so does the direction of movement as the direction of concentration gradient, so does the direction of movement of molecule. That is for facilitated diffusion, it's not for active transport because active transport is against the concentration gradient, तो वो तो होना ही from low to high है, तो that thing is not applicable to
this active transport. Molecules always move at the same rate as simple diffusion. तो इसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि वो सेम रेट पे ही जाएंगे as simple diffusion. It depends on the number of proteins present in the cell membrane. If there are more proteins, then there will be more rate of diffusion. Diffusion तो simple होती है ना, that's not facilitated by something. Simple diffusion तो simply for me, आपने किसी corner में परफ्यूम स्प्रे किया तो थोड़ी देर में उसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो स्प्रेड कर जाएंगे. दैट डज नॉट नीड एनीथिंग, दैट डज नॉट नीड फैसिलिटेशन ऑफ एनीथिंग. बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देयर आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स व्हिच हेल्प इन एंड व्हिच फैसिलिटेट इन द डिफ्यूजन. सो फॉर दैट जितने ज्यादा आपकी अवेलेबल होंगी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स, उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा. तो इट्स नॉट लाइक सिंपल डिफ्यूजन के ऑलवेज एट द सेम रेट इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल. और कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, वो तो सिंपल डिफ्यूजन भी डिपेंड करती है. और ये भी आपको पता है कि कैरियर प्रोटीन में थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो स्लो रेट पे होती है और चैनल में थोड़ा फास्ट होता है, हाई रेट होता है, बिकॉज इट्स वाटर फिल्ड चैनल इन बिटवीन थ्रू विच ऑल द पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, विच डिफ्यूज इन वाटर एंड सॉल्युबल इन वाटर, दे मूव अलोंग वाटर. तो उसका स्पीड जरा ज्यादा होता है. तो इसलिए यहाँ पर सिंपल डेफिसिटेटेड डिफ्यूजन में इवन अमंग कैरियर एंड चैनल प्रोटीन ही जो डिफ्यूजन है उसके रेट्स डिफरेंट है. तो इट्स नॉट लाइक सिंपल डिफ्यूजन के हमेशा सेम रेट पे होगा. The specific molecules are transported across a membrane, तो that is correct for both of these, क्योंकि active transport भी कैरियर प्रोटीन से होती है. not for every कैरियर protein is not for every molecular ion, it's specific for a specific molecule and ion, just like enzyme and substrate. और facilitated diffusion भी हर एक ion के लिए there is a specific channel and हर एक molecule के लिए there is a specific carrier protein which allows the movement of those ions and molecules थ्रू. तो वो हर एक आयन और मॉलिक्यूल हर एक चैनल और कैरियर प्रोटीन से मूव नहीं कर रहा होता. देयर इज स्पेसिफिसिटी इन इट. सो दैट इज C is correct. The molecule ATP is required to move specific molecules quickly through proteins in the membrane. The molecule of ATP, that's energy, is needed for active transport but not for facilitated diffusion, because diffusion is done from high to low concentration, which does not need energy. So in some cases it is type of secondary active transport कि active transport कहीं और पे हो रही है. जैसे कि आपका loading of sucrose का topic है कि उसमें proton pumps हैं जो कि energy use कर रहे हैं और protons pump out कर रहे हैं. जब वो accumulate हो जाते हैं तो that they tend to move backward from high to low concentration. For this they need, because they are polar, they are charged, so they need facilitation of a protein. For this there is a specific co-transporter protein which allows sucrose and protons to move in. तो उसमें जो movement of proton है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है कि प्रोटॉन्स बाहर ज्यादा थे, अंदर मूव इन कर गए बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. बट हम उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिगिनिंग जो इस प्रोसेस की हुई थी वो प्रोटॉन पंप से हुई थी और प्रोटॉन पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करके पंप आउट कर रहे थे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन्स आउट ऑफ द सेल इनटू द सेल वॉल. फिर वही जब अंदर वापस मूव किए फ्रॉम हाई टू लो बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो हमने कहा कि दैट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है. और जो उसके थ्रू सुक्रोज जा रहा है दैट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के वो जो है वो फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है सुक्रोज. और वो यूज कौन सी एनर्जी कर रहा है, वो जो प्रोटॉन्स मूव आउट गए थे वो प्रोटॉन्स अंदर जा रहे हैं तो वो सुक्रोज साथ लेके जा रहे हैं. तो मूवमेंट ऑफ सुक्रोज इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो उस केस में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, उस केस में एटीपी यूज हुआ है, लेकिन दैट्स utilized by the proton pump, not exactly by the co-transporter protein which facilitatively diffusing protons along with sucrose. तो सुक्रोज की मूवमेंट को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, बट सेकेंडरी नॉट डायरेक्टली. तो उसमें डायरेक्ट एटीपी नहीं यूज हो रहा, तो इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केस में एटीपी यूज नहीं होता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है. दैट्स आल्सो रॉन्ग. Equal size potato pieces were placed into a test tube and covered with sucrose. The test tube was left for 30 minutes. All other variables were standardized. ठीक है, आप किस पोटेटो पीसेस हैं, इक्वल साइज है, टेस्ट ट्यूब में रखा है और उसको आपने कवर कर दिया विद सुक्रोज सॉल्यूशन.
अब क्या होगा, सारे पोटैटो पीसीज और सुक्रोज सोल्यूशन आप रखेंगे, अगर तो पोटैटो पीस और सुक्रोज सोल्यूशन के अंदर वाटर पोटेंशियल सेम है तो फिर कोई विल बी नो नेट मूवमेंट, और अगर देयर इज डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल तो देन देयर विल बी मूवमेंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड, आइदर एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस। बट सुक्रोज जो है ना, विच इज अ बिग मॉलिक्यूल, इट इज नॉट गोइंग टू मूव इन एंड आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज इट्स नॉट परमिएबल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सुक्रोज की मूवमेंट नहीं होगी, होगी तो वाटर की होगी। तो वाटर की भी कब होगी, वाटर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। जहां वाटर की कंसंट्रेशन हाई है वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव टुवर्ड्स द अदर साइड। ठीक है, अब लेट्स सी, द concentration of sucrose is the same in the potato in the solution and there is no more movement of water into or out of, so there is no more movement of water into or out of the, अच्छा एक तो बेटा हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि मूवमेंट नहीं हो रही, देयर इज नो मूवमेंट बिकॉज वाटर कीप्स ऑन मूविंग इन एंड आउट, बट वो इक्विलिब्रियम में मूवमेंट हो रही होती है कि जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर जा रहा है, तो उसको हम कह देते हैं नो नेट मूवमेंट, यानी एज सच टोटल नेट कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बट मूवमेंट इज स्टिल देयर। तो द concentration of sucrose is the same in the potato। और दूसरी बात है कि हम सुक्रोज की concentration नहीं देखेंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, हम तो ये देखेंगे ना कि वाटर पोटेंशियल कहाँ पे हाई है और कहाँ पर लो है। फिर द concentration of sucrose is the same in potato, वो अगेन वही concentration of sucrose देख रहे हैं and there is no net movement। तो हम वही वाली बात कि हम concentration of, तो यहाँ पे ये चीज भी गलत है and there is no movement भी गलत है। यहाँ no net movement वाली बात सही है, but concentration of sucrose पे डिपेंड नहीं कर रही वाटर की मूवमेंट, that depends on water potential। ठीक है, अगर हमने मूवमेंट देखनी है फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर तो उसमें हम फिर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन एज सच नहीं देखेंगे, हमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन देखनी है। ऑफ कोर्स की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज्यादा होगी तो आपका वाटर पोटेंशियल भी जो है वो लो हो जाएगा, लेकिन हमने वाटर की पर्टिकुलरली भी देखनी है कि वाटर मॉलिक्यूल्स किस एरिया में ज्यादा है। अच्छा, the water potential is the same in the potato and in the sucrose solution and there is no more movement। again वही no more movement वाली बात आ रही है, net movement नहीं कह रहे क्योंकि movement is still there, but हम कहते हैं जी no more movement के movement अब आगे नहीं हो रही, further नहीं हो रही, that's wrong। तो this is wrong, this is wrong, this is wrong, phrasing is actually wrong। सिनेरियो एक ही है, सिचुएशन वही हो रही है जी, क्या हो रहा है, वाटर पोटेंशियल इज द सेम इन द पोटैटो एंड द सुक्रोज सॉल्यूशन, इन दोनों साइड पे सेम वाटर पोटेंशियल है एंड देयर इज नो नेट मूवमेंट, मूवमेंट हो रही है बट नेट कोई ऐसा टोटल नहीं हो रही कि जो हमें विजिबल हो और हमें पता चले कि जी इस साइड पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, इस पे कम हो गया, ये नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, दोनों साइड पे वाटर पोटेंशियल सेम जो है वो मैनेज हो रहा है। So D is the correct option actually because the phrasing is all correct। Which functions are performed by glycoproteins on the surface of cell surface membrane? देखो बेटा glycoproteins के बहुत से functions हैं जो कि जैसे they behave as antigens, they behave as receptor proteins and मतलब इनके डिफरेंट फंक्शंस है ग्लाइकोप्रोटीन्स के ना, एंटीजन के तौर पे बिहेव कर रहे हैं जो कि किसी भी सेल की पहचान है, मार्कर्स हैं, रिसेप्टर्स के तौर पे बिहेव कर रहे हैं जो किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर रहे हैं, उसको उसकी प्रेजेंस को जो है वो परसीव करके तो उसके लिहाज से जो भी कोई चेंजेस आ रही हैं वो कर रहे हैं। फिर यही ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं ये करियर और चैनल प्रोटीन्स के तौर पे भी बिहेव कर रही हैं, यानी करियर चैनल प्योरली प्रोटीन्स, लेकिन अगर उन्हीं के साथ कोई कार्ब चेन लगी हुई है तो दैट्स कॉल्ड एज ए ग्लाइकोप्रोटीन। तो करियर चैनल प्रोटीन्स भी हैं, फिर करियर प्रोटीन्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हैं। तो इन ग्लाइकोप्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। So they are saying कि which functions are performed by the glycoproteins to act as enzyme catalyzing reaction in the membrane, enzyme catalyzing reaction in the membrane, enzyme catalyzing reaction in the membrane is यानी glycoprotein is behaving as an enzyme और as a catalyst काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता, that's not the function of a glycoprotein। act as enzyme catalyzing reactions in the membrane, हाँ enzymes के तौर पे नहीं behave कर रहे होते glycoproteins। उसके अलावा हाँ there are some proteins in the membrane which behave as enzymes which secrete an enzyme, और वो फिर जो सेल सिग्नलिंग में एंजाइमेटिक कैस्केड चल पड़ती है कि अंदर कोई इनएक्टिव एंजाइम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, दैट्स करेक्ट। बट ग्लाइकोप्रोटीन्स वो नहीं करी, वो प्योर एंजाइम्स आर प्योर प्रोटीन्स, प्योर प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन में होती हैं, वो इस तरह का कोई फंक्शन परफॉर्म करी होती है। तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज एंजाइम्स
कैटलाइजिंग रिएक्शन अगर चल भी रहे होते हैं तो एंजाइम्स आर नॉट ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे आर प्रोटीन्स. To have a specific site where chemicals can bind, to have a specific site where chemicals can bind, yes it is correct. यही तो रिसेप्टर होगा, जैसे ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और इसमें ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें ये एक इसकी अटैचमेंट साइट है. अब इस स्पेसिफिक शेप का इट इज नाउ बिहेविंग एज ए रिसेप्टर मॉलिक्यूल, और ये जो रिसेप्टर है, जब इस रिसेप्टर का स्पेसिफिक, ये रिसेप्टर के तौर पे बिहेव कर रहा है, उस रिसेप्टर का स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आएगा जैसे कि ये, तो इट्स गोइंग टू फिट इनटू द बाइंडिंग साइट ऑफ दिस रिसेप्टर एंड देन एज a result the resulting reactions are going to take place. So to have a specific site where chemicals can bind, yes, it's behaving as a receptor, that is correct. To secrete specific chemicals used for chemical signaling, secrete specific chemicals used for cell signaling. नो ग्लाइको, वो अगेन वही वाली बात कि इट्स लाइक ये फंक्शन ऐसा लग रहा है कि वो एंजाइम का फंक्शन है ना, कि एंजाइम जो है वो, अगर इफ दिस इज बिहेविंग एज ए, दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज बिहेविंग एज एन एंजाइम, तो वो एंजाइम सिक्रीट करेगा वो स्पेसिफिक कोई केमिकल्स, हम उनको कह सकते हैं जो कि सेल सिग्नलिंग में हेल्पफुल होंगे, लेकिन वो एंजाइम्स हैं विच आर मेड अप ऑफ प्योरली प्रोटीन्स. ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट चेन्स नहीं होती हैं. तो इस लिहाज से आपका जो है ये भी एंजाइम्स की बात है, ये भी एंजाइम्स की बात है, जबकि एंजाइम्स आर नॉट ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो आपका सिर्फ ये वाला सही बनता है कि इनकी एक स्पेसिफिक साइट होती है, जैसे कि ये आपको नजर आ रही है, वेयर स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कम्स एंड अटैचेस एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस. सो 2 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. अच्छा जी, the diagram represent a process by which molecules move out of cell through a cell surface membrane. Move out of a cell. They are moving out of a cell. Keep it in your mind. Move out of a cell. It means this is inside of the cell. This is outside. And you can observe that here there are more cells. So these cells are facilitatively diffusing, क्योंकि ये एक आपको करियर प्रोटीन नजर आ रही है जिसमें ये पहले सेल्स अंदर एंटर हुए, यहाँ से वो ओपन हुई, ये बाइंडिंग साइड में अटैच हो गए, उसके बाद करियर प्रोटीन यहाँ से ओपन हुई दूसरी साइड से, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने मूव आउट करना है, दे हैव नाउ मूव्ड आउट ऑफ द सेल थ्रू द करियर प्रोटीन. तो ये कौन सा प्रोसेस है, वैसे ही आपको समझ आ गया कि करियर प्रोटीन इन्वॉल्व है, तो ऑफ कोर्स इट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इट इज नॉट ऑस्मोसिस बिकॉज मेंशन नहीं है कि वाटर है कि क्या है. फिर इट्स नॉट डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, खाली डिफ्यूजन नहीं है. एंड इट्स नॉट एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि एक्सोसाइटोसिस में भी ये होता है कि एक्चुअली बल्क ट्रांसपोर्ट होती है, बल्क में, यानी ह्यूज सेल्स और मतलब लार्ज थिंग्स जो है ना इन बल्क मूव आइदर इन एक्सोसाइटोसिस आउट ऑफ द सेल. ठीक है, और उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वो एक्सोसाइटोसिस में यूजुअली आपके पास एक्सोसाइटिक एक जो है वो वैक्यूल होता है जो कि फ्यूज कर जाता है विद द सेल मेम्ब्रेन, और फिर वो जो फ्यूज करके अपनी सिक्रीशन ड्रेन आउट कर देता है. तो यहाँ पे कोई ऐसी फ्यूजन और कुछ चीज नजर नहीं आ रही जिससे आप उसको एक्सोसाइटोसिस से मैच करो. सो दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. The photomicrograph shows the appearance of onion epidermal cell after they have been soaked in solution X for 1 hour. सोल्यूशन X में आपने रखा तो Y में क्या होगा. अब ये डिफरेंट सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, आपने सोल्यूशन X में रखा, सोल्यूशन X में रखा तो आपको ये तो पता लग रहा है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि आपके जितने भी सेल्स हैं वो सब श्रिंक कर गए हैं. दीज आर द सेल वॉल्स एंड दिस इज यू कैन सी द लिविंग प्रोटोप्लाज्म, जिसमें कि आपको न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है. ये आपकी जो है ना इसका जो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है, ये आपको पता लग रहे हैं दे हैव श्रंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल, क्योंकि प्लाज्मोलिसिस हो गया. तो वो ये कह रहे हैं कि इस जगह पे व्हाट फिल्स द स्पेस लेबल्ड वाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अरे वही सोल्यूशन होगा जो बाहर था, वही सोल्यूशन एक्स जो बाहर से अंदर आएगा, अंदर से आएगा तो इट विल कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म जो है इट इज गोइंग टू लूज वाटर इनटू दिस एरिया एंड विल गेट प्लाज्मोलाइज. तो इस एरिया एक्स में क्या चीज होगी, इस एरिया एक्स में वाई में क्या होगा, आपका सोल्यूशन एक्स होगा जिसमें क्या आपने अपना एपिडर्मल सेल रखा है.
वही होगा सारे सराउंडिंग में। विच फीचर्स आर करेक्ट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था कि दोनों के लिए कौन सी चीज जो है वो करेक्ट है। सो लेट्स सी कौन से करेक्ट है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस डिपेंड ऑन एटीपी। अगेन वही वाली बात, एटीपी की बात फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए नहीं होती। wrong. They are specific for one type of molecule ion, वही वाली बात correct. So they are specific. They use membrane protein, yes. Facilitated diffusion दिए, active transport, they both use carrier protein. That's correct. And कौन से दो option correct हुए आपके 2 and 3? अच्छा जी, अभी आप देखें द डायग्राम रिप्रेजेंट टू सॉल्यूशंस पी एंड क्यू दैट वर सेपरेटेड बाय अ पार्शियली परमिएबल डायलिसिस ट्यूबिंग। अभी बीच में आपको उन्होंने मेम्ब्रेन शो की हुई है, इर्द गिर्द आपके सॉल्यूशंस है। व्हाट विल बी द इनिशियल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स 1 2 एंड 3। ठीक है, आप देखिए कौन सा किधर से किधर जाएगा। अब आपको साफ पता चल रहा है कि ये जो छोटे छोटे से है ना मॉलिक्यूल 1, ये इतने छोटे और इधर इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली मूव फ्रॉम क्यू टू पी। ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूल 1 है ये वाला, ये क्यू टू पी जाएगा। उसके बाद आप ये वाले काउंट करेंगे जो बॉक्स की तरह है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ऊपर भी। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही इधर भी है 8 ही इधर है। मॉलिक्यूल 2 जो है दोनों साइड पे 8 है, बराबर है। दे आर नॉट गोइंग टू मूव टू एनी डायरेक्ट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, सोल्यूशन पी और क्यू दोनों में वो मूव नहीं करेगा, इनकी मूवमेंट नहीं होगी। और फिर आपके पास ये जो लॉन्गिट्यूडनल सॉर्ट ऑफ ये ओवल से नजर आ रहे हैं, ये इधर कोई भी नहीं है और इधर ही है, 1 2 3 4 5 6 6 के 6, दे आर गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस टू दिस साइड, पी टू क्यू। अब आप देखें नेट मूवमेंट फ्रॉम क्यू टू पी, क्यू टू पी किसकी हुई है? मॉलिक्यूल 1 की। पी टू क्यू किसकी हो रही है? ये आपका पी टू क्यू किसकी हो रही है? मॉलिक्यूल 3 की। ये वाला। ठीक है, तो इस मीन्स कि आपकी यही ऑप्शन करेक्ट है। नो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल 2 क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर ऑन बोथ साइड्स। ये तो आपका मॉलिक्यूल 3 मूव ही नहीं कर रहा, तो आपकी ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, आपकी ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है a student weighed a cylinder of potato and then put it into a test tube containing a salt solution। ठीक है, पोटैटो सिलिंड्रिकल फॉर्म में इस तरह से उसने कट किया, सॉर्ट ऑफ सिलिंड्रिकल सी उसकी शेप है, और उसको उसने कहाँ रखा है? सॉल्ट सोल्यूशन में रखा है। अब सॉल्ट सोल्यूशन में उसने कितनी देर रखा है? द पोटैटो सिलिंडर was removed from the salt solution after 1 hour. It was bolted dry एंड देन रीवेट। आपने उसको अच्छी तरह थोड़ा सा ना टॉयलेट पेपर से, टिश्यू पेपर से थोड़ा खुश्क कर लिया और फिर दोबारा से उसको वेट किया। द स्टूडेंट रिकॉर्डेड दैट पोटैटो हैड लॉस्ट मैस। उसने देखा कि पहले उसका मैस जो है वो जो है ज्यादा था, अब कम है। अब कितना क्लियर और कितना आसान क्वेश्चन है, विच रो शोज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब उसका मैस कम हो गया है, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ द पोटैटो सेल बिफोर सोकिंग कंपेयर टू वाटर पोटेंशियल आफ्टर सोकिंग। इसका मतलब ये है कि मैस कम हो गया तो वाटर पोटेंशियल भी कम हो गया। पहले उसका वाटर पोटेंशियल हायर था, अब कम हो गया है। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ द पोटैटो सेल बिफोर सोकिंग कंपेयर टू वाटर पोटेंशियल आफ्टर सोकिंग। ठीक है, तो पहले जो आपने उसको सोक किया था उसको उसका वाटर पोटेंशियल हाई था। ठीक है, इससे आपको ये पता चला। अब आप कम हो गया, मैथ भी तो लूज किया, ये दोनों करेक्ट हो गए। कंडीशन ऑफ पोटैटो सेल आफ्टर सोकिंग, तो पोटैटो सेल को आप जब रखेंगे शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन में और वो वाटर लूज करेगा तो क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नाउ these are all the questions from October November 2022 session from cell membrane and transport। अब मैं आपके जो है वो नेक्स्ट आपको एंजाइम्स के क्वेश्चंस करवाती हूँ इंशाल्लाह। I'll upload that video as well soon।